Hello everyone. Today we will learn about the ogive. The learning objective of today's video is you all will be able to draw ogive for the less than type of cumulative frequency distribution, and you will also be able to find the median from the ogive. Now the graphical representation of cumulative frequency distribution. It is called as ogive. The pronunciation for this is OJEEV, that is ogive, as it is derived from the word OG. You can read this paragraph from your NCERT textbook. Now, ogives are of two types. One is less than type and the other one is more than type. Always remember, ogive आपने जब भी draw करना हो, they will always ask कि आपने less than type ogive draw करना है या आपने more than type ogive draw करना है. इस वीडियो में I will explain you about the drawing of less than type ogive. Now, to explain this data, I have considered this question. The daily income in rupees and the number of workers are given to us. Daily income 100 to 120 and the number of workers are 12 here. Then daily income is 120 to 140, number of workers are 14. 140 to 160, number of workers are 8. 160 to 180 is the daily income and the number of workers in it is 6, and the last class interval is 180 to 200 and the number of workers are 10. Now this data is given to us. We have to draw the less than type cumulative frequency distribution. Always remember one thing, जब भी आप लोगों ने लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, you will always consider the upper limit of the classes. Just observe this. Class के अंदर I have written less than 120. See, 120 is the upper limit of the first class. Then less than 140. 140 is the upper limit of the second class. Less than 160. 160 is the upper limit of the third class. Less than 180, it is the upper limit of the fourth class. And then less than 200, which is the upper limit of the last class. Now, I think this is clear to you that whenever we have to write less than, you must write the upper limit. अब इसके बाद we will find the cumulative frequency. Frequency is given to us, and in the previous video I have explained how to find the cumulative frequency. Now we will find the cumulative frequency in its usual way. पहली वाली frequency हमेशा same रहती है, so cumulative frequency for the first one less than 120 is 12. अब next के लिए जब हमने cumulative frequency निकालनी है, then आपने 12 और 14 दोनों को add करना है. So 12 plus 14 is 26. Similarly 26 plus 8 is 34. 34 plus 6 is 40, and then 40 plus 10 is 50. So we have converted the given data in less than type cumulative frequency distribution. Less than upper limit, and then we'll find the cumulative frequency. इसके बाद this is the summarize I have done like this कि class given है, cumulative frequency, मैंने frequency वाला column नहीं लिखा ताकि आपको प्लॉटिंग में कोई मुश्किल ना आए. सो लेस देन 120 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 और ये सारा के सारा ऐसे. अब इसके बाद जब हमने इसका ओजीव ड्रॉ करना है, फर्स्ट स्टेप, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सेस, वर्टिकल लाइन इज द वाई एक्सेस. एक्स एक्सेस पर आपने लेस देन टाइप ओजीव के लिए हमेशा अपर लिमिट को प्लॉट करना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सेस. अब आपने स्केल जो भी लेना है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है. तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप लोग स्केल को मेंशन कर सकते हो. एक चीज़ का बेटा ध्यान रखना, जब भी आप लोगों ने स्केल प्लॉट करना है, अगर किंक की ज़रूरत हो तो यू मस्ट ऑलवेज प्लॉट किंक. नाउ सी दिस वॉज द डाटा, राइट. See, I have plotted the kink here. Why kink? Because there is a gap of 20, but from 0 to 120, so there is too much of gap, so I have plotted the kink. हम kink तब draw करते हैं when this difference and this they are not same, so that is why I have plotted the kink. Kink आप y axis पे भी plot कर सकते हो if it is required. Now here it was required
तो मैंने वाई एक्सिस पर भी किंग को प्लॉट किया। नाउ अब ये सारे पॉइंट्स अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ए बी सी डी ई हैं क्या। अब देखिए बेटा यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं, राइट। सो 120 लिमिट्स हमने कौन से एक्सिस पर ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस पर, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर। तो फर्स्ट के लिए कोऑर्डिनेट हो गया 120, 12, सो 120 एंड 12, सो दिस वे वी गॉट पॉइंट ए। 140, 26, एक्स एक्सिस पर 140, वाई एक्सिस पर 26, एक्स एक्सिस पर 140, वाई एक्सिस पर 26। जब हमने ये प्लॉट किया वी गेट पॉइंट बी। सेम वे आप लोग सी डी और ई को भी प्लॉट करोगे। इन पॉइंट्स की नेमिंग आप ए बी सी डी ई करके या कोई भी रनिंग अल्फ़ाबेट्स में लिखना। उसका बच्चा एक ये होता है जब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, कई बार ज्वाइनिंग के टाइम पर गलती हो जाती है। अगर आप लोगों ने ए बी सी डी ई लिखा हुआ है तो आपको पता है कि ठीक है ए पॉइंट को आपने बी से ज्वाइन करना है, बी को सी से, सी को डी से और डी को ई से। आप कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करोगे जब आपने इनको ज्वाइन करना है। नाउ लेट्स राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 120, 12, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 140, 26, coordinate of point C 160, 34, coordinate of point D is 180, 40 and coordinate of point E is 250, right? See, अब इसके बाद हम लोगों ने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है फ्री हैंडेडली। अगर आपने ए को बी से स्केल से ज्वाइन करना है स्केल से ज्वाइन करो, अदरवाइज आप फ्री हैंडेडली इन पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आपको कर्व मिलेगा, यू विल नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपको एक एस शेप टाइप मिलेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओजीव। सी, ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ये हमने इनको ज्वाइन कर लिया, राइट। सो दिस इज द फाइनल लेसन टाइप ओजीव, राइट। पॉइंट्स के नेमिंग है, कोऑर्डिनेट्स है, किंक है, एक्स एक्सिस लिखना है, वाई एक्सिस लिखना है, एक्स एक्सिस पर अपर लिमिट, वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव frequency. After suppose you want to find the median from the graph, I'll explain you that also. मीडियन को आप ग्राफिकली निकाल सकते हो। फॉर्मूले से कैसे निकालना है वो तो आपको पता ही है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको निकालना हो मीडियन को ग्राफिकली, राइट, तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं अब इस स्लाइड के बाद आई विल एक्सप्लेन दैट, राइट। सो लेट्स फाइंड मीडियन फ्रॉम द ओजीव। दिस वॉज द डाटा वी हैड, राइट, लेस देन 120, 12। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट वाली जो थी, याद है, दिस वॉज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम इज़ 50। अब हम जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फ़ाबेट एन से। एन इज़ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, राइट। अब ये n आ गया, अब इसके बाद आपने निकालना है n/2, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी को आप ये जो लास्ट n वैल्यू थी इसको आपने हाफ किया तो 50 का हाफ इज 25। अब हमने 25 को y एक्सिस पर देखना है, राइट, क्योंकि n क्या था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम कहाँ पे प्लॉट करते हैं, y एक्सिस पर, तो 25 आपने कहाँ पर लोकेट करना है, y एक्सिस पर। 25 को आपने y एक्सिस से ज्वाइन करना है ओजीव तक। ओजीव पर जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से आप आना डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। यहाँ कहीं ना कहीं इस पॉइंट हमें मिल जाएगा ना, दिस पॉइंट इज़ द मीडियन। कई बार ग्राफ की वैल्यूज़ के उसमें हमारा डेसिमल के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आता है, सो नियरली वी गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीडियन। इफ़ यू वांट यू कैन वेरीफाई योर रिजल्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर द मीडियन, राइट, बिकॉज डाटा आपके पास है, फॉर्मूला आपको पता है। अगर आप इस डाटा का मीडियन निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, इट विल बी नियरली 140। सो मीडियन हमेशा आपको एक्स एक्सिस पर मिलेगा। आपको ये रिजल्ट याद है, मीडियन ऑलवेज लाई बिटवीन द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मीन्स क्लास इंटरवल, एंड क्लास इंटरवल में लिमिट्स है, सो दैट इज़ वाई मीडियन आपको हमेशा मिलेगा एक्स एक्सिस पर, राइट। n/2 पॉइंट आपने देखना है y एक्सिस, y एक्सिस से ओजीव, ओजीव से आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओगे, जिस पॉइंट पर ये x एक्सिस को कट करेगा दैट वैल्यू इज़ द
median. Now the learning outcome. I hope you all are able to draw Ogive for the less than type cumulative frequency distribution and also able to find median from the Ogive. Thank you everyone.